Good evening and welcome everyone to this live session. I'm Jatin Verma. So guys, today we are going to start with the fiscal policy. So that is the reason that I'm a bit enthusiastic about it. We are going to learn something new, some new and interesting examples to explain you fiscal policy. Fiscal policy is the policy of income and expenditure of Government of India. But before we begin, there is a small topic, limitations of monetary policy, this and then Urjit Patel report. Today we saw one editorial, one write-up, one interview by Urjit Patel, the former governor of RBI. When he was not the governor, when Raghuram Rajan was the governor, he had submitted a report to RBI. We are going to see a glimpse of this report first of all in the first 15 minutes of this session, and then we'll move on to the fiscal policy thing. Okay, so just let me keep a tab on your comments also. Anybody having any doubt in the topics that we have covered already? On 6th of September, yes, 6th of September, you will be having a test of Indian polity. IGS students, integrated GS batch students, इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने जो भी कवर किया उसका टेस्ट होगा 10th of September को. अब तक हमने जो भी कवर किया है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड एंड फैक्ट्स ओरिएंटेड टेस्ट विल बी देयर अराउंड द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स of Indian economy. 10th of September, the topics that we have covered so far, and from 10th of September onwards in the integrated GS batch course, in the integrated GS batch, this is it. So this is here, and then in the integrated GS batch we will be just give me 1 minute guys, just 1 minute. In the current affairs course, we will be having the question answer format of covering the topics. Okay, the topics will be there. Current affairs questions, mains questions will be framed around those topics. All right, so that will give a new dimension to the course. Side by side, weekly current affairs thing will also be there. Weekly current affairs जो रहता है वो भी साथ साथ चलते रहेगा, जो राउंड अप काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी सॉ ऑन येस्टरडे. सो टॉपिक बेस्ड मेंस का जो मैंने कहा था कि अब कुछ कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस होंगे, तो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके मेंस के क्वेश्चंस धीरे धीरे से आने अब शुरू हो जाएंगे. राइट, दैट विल हेल्प यू गाइज इन कवरिंग योर syllabus as well. Now in the mains answer writing as well. So report of the expert committee to revise and strengthen the monetary policy framework. Report of the committee here. Now introduction, terms of reference, recommendations, determinations of interest rate by banks, all these things are there. Urjit Patel, the former governor, India's monetary policy framework has undergone several transformations reflecting the underlying macroeconomic and financial conditions. In the post-global financial crisis years, particularly, there has been considerable debate around the monetary policy framework, especially due to the coexistence of persistent high inflation and sluggish growth. So what is the technical word for this thing, this particular line? I'm asking you a question. What is the technical word for this thing? Please answer, all of you. क्या टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, बताओ, फटाफट से बताओ.
stagflation, right? So the word that we use for this is stagflation. Accordingly, an expert committee to revise and strengthen the monetary policy framework was appointed in 2013. The main objective of the committee is to recommend what needs to be done. So Urjit Patel, the deputy governor, he was before he was finally appointed as the governor RBI. So this thing is there. Now, terms of reference to review the objectives, to recommend, ये सारी इसकी terms and reference थी. Recommendations, the choice of nominal anchor. So today I'm going to explain you what is this anchoring thing. Inflation should be the nominal anchor for monetary policy framework. This nominal anchor should be set by the Reserve Bank as its predominant objective for monetary policy in its policy statements, right? Inflation should be the nominal anchor. Subject to the establishment and achievement of the nominal anchor, monetary policy should be consistent with a sustainable growth trajectory and financial stability. What is a nominal anchor? A transparent and predictable policy framework is almost by definition rule based. Central to a credible framework is a nominal anchor. देखो credible policy framework के लिए क्या चाहिए? Rule based होना चाहिए. And central to a credible framework, rule based framework is a nominal anchor. Nominal anchor का मतलब ये होता है कि हमने एक एंकर को सेंटर स्टेज पे रख दिया. जस्ट समझना इसको, जैसे टीवी में एंकर होता है, ठीक है. आरबीआई ने बैंक्स को ये ऑप्शन दिया. इट वाज February 2019. आरबीआई गेव द ऑफर. Just let me pull out the relevant PPT. Since the banks were not cutting the rate of interest, even as RBI had cut the rate of interest. So RBI wanted the banks to have a transparent manner of regulating their monetary policy, right? So if the banks are keeping the inflation as a target, okay, monetary policy, nominal income, exchange rate targeting, inflation targeting, price level targeting. Just 1 minute. I just want to tell you how the rates of determination of interest rates by the banks. So this has been a long drawn battle, or you can say a kind of dispute between the banks and the RBI. RBI cuts the repo rate and expects the banks to cut the same, to pass on the rate cut. Now if RBI is cutting the repo rate, by 0.25%, okay, 0.25%, same rate cut has to be passed on to the banks, right? 2010 से पहले 2008 I would say yes, 2010 में ये बेस रेट रहा गया. उससे पहले होता था बेसिक प्राइम लेंडिंग रेट. आई एम गिविंग यू अ बैकग्राउंड. बेसिक प्राइम lending rate, base prime lending rate, the one that existed until 2010. 2010 तक
बेस प्राइम लेंडिंग रेट चलता रहा। इसमें यह था वो बेस रेट जो बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स पे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोन के रूप में देगा उसे बोला जाता है बेस प्राइम लेंडिंग रेट। डन। बेस प्राइम लेंडिंग रेट कट करना जरूरी होता था बैंक को, और बाकी सारे रेट, अगर बेस प्राइम लेंडिंग रेट है 10,000 करोड़ के लोन के लिए 8%, तो छोटे मोटे लोन के लिए रेट हो जाएगा 10.5%। ठीक है, जो छोटा कस्टमर आया कोई 5 लाख का, अब ये 8% रेट विजय माल्या जैसे या जो वेल्दी कस्टमर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता था। क्यों? क्योंकि एक बड़े लोन में पेपर वर्क कम हुआ, एक ही बार में 10,000 करोड़ लेंड कर दिए, एम्प्लॉय कॉस्ट कम आएगी, खींचातानी कम होगी, पेपर वर्क कम होगा। छोटे लोन्स में क्या होता है, 5 लाख रुपीस के लोन के लिए उतना ही पेपर वर्क करना पड़ता है जितना 10,000 करोड़ के लोन के लिए करना पड़ेगा। तो सिंस द बैंक वॉज एबल टू सेव द अमाउंट, सो दे सेड कि ओके 10,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, फॉर 10,000 फॉर लोन्स अप टू 20 lakh rupees this will be the rate, for loans above 20 lakh rupees it will be 10.25 rate, 10.25%. If for example RBI is reducing the repo rate by 0.25%, RBI expected the banks to reduce it to 7.75%. Okay, concomitantly banks were expected to reduce their lending rates so that monetary policy transmission is smooth. आरबीआई क्या चाहता है, जब रेपो रेट कट कर रहा है तो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन ये है कि सभी बैंक जो है मार्केट में पैसा ज्यादा लेंड करें। बैंक शुड लेंड मोर मनी इनटू द मार्केट so that people start purchasing more goods, more tiffin boxes, more Parle G, more cars, more petrol, more vegetables, more ketchup, more chips, everything, right? अब ऐसी सिचुएशन में अगर बैंक अपना ये BPLR कैसे डिटरमाइन कर रहा है ये पता ही नहीं था। दिस वाज अ काइंड ऑफ ब्लैक होल। क्राइटेरिया क्या है, तो 2010 में अब जब BPLR जो बेसिक प्राइम लेंडिंग रेट है वो 7.75% होगा, कंकॉमिटेंटली सारे रेट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते थे, राइट। BPLR का जो था एक पता ही नहीं होता था कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आरबीआई ये कहता था कि छोटे मोटे लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, बड़े लोगों के साथ कोई अलग ही लेवल पे डील होती थी, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। तो आरबीआई वांटेड टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी in the way in which this rate of interest is determined by the banks. Clear? Yes, for wealthy persons, banks used to give a very cheaper rate of interest for wealthy customers, whereas the rate of interest for the poor customers, for the not so wealthy customers was very high. So RBI wanted the banks to disclose the criteria in which the rate of interest, the criteria as per which the rate of interest is determined. So cost of funds, what would be the cost of funds to the bank? If a bank is having two sources of funds, let us say one, the already collected deposits which were at a higher rate of interest, on this bank would have offered 6.5% rate of interest, right, on this 10,000 crore rupees, let us suppose. Now after let's say 2000, as per this formula, after 2000 and let's say August 2020, if the RBI has reduced the rate of interest, bank is now in a position to borrow money at 5.5% rate of interest. If a bank wants to reduce the average cost of borrowing, what would be the criteria? What would be the criteria if a bank wants to reduce the average cost of funds? Bank would borrow 10,000 crore rupees at the cheaper rate of interest. So 5.5 पे 10,000 करोड़, फिर 6.5 पे 10,000 करोड़, तो टोटल कॉस्ट बैंक की कितनी आई? कैन बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 2 sets of 10,000 crores are there. 12%,
average cost will come down to 12 by 2 is equal to 6%, right? RBI wanted banks to bring down their average cost of funds whenever the rate cut was done. Whenever RBI does the rate cut, RBI expects banks to borrow the money at a fresh rate of new rate of interest and calculate their average cost of funds, average cost of collecting the money for on lending to the customer at this rate. Okay, banks would not listen to RBI. मीन्स फिक्स रेट नहीं बताया जाता था, यस, ठीक है। अब बैंक्स ये बोलेंगे कि भैया जो पहले 6.5% पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें 10,000 करोड़ और चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों लें? मतलब समझ रहे हो, मेरे पास कस्टमर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने पे कस्टमर है मेरे पास कस्टमर है सिर्फ 500 करोड़ लेने का। आरबीआई कह रहा है कि तुम अभी से ही 10,000 करोड़ ले लो, क्योंकि मैं सस्ते रेट पे दे रहा हूं, अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर लो और फिर लेंड करो। मेरे को लेंड करना है 500 करोड़, मेरे पास पड़े हैं 10,000 करोड़, तो पहले मैं वो 500 करोड़ तो लेंड करूंगा ना, उसके बाद मैं देखूंगा। अल्टीमेटली इसमें मेरा नुकसान है, क्यों? क्योंकि मैं 10,000 करोड़ नया बोरो कर रहा हूं, जिसके लिए कि अभी कस्टमर नहीं है मेरे पास, तो मैं इस 10,000 करोड़ पे इवन इफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5%, वो क्यों लेंड करूंगा? नहीं करूंगा ना लेंड। कॉमन सेंस है कि मैं क्यों करूंगा, बोरो क्यों करूंगा जब मेरे पास ऑलरेडी पैसे पड़े हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ लैग इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो कि हमने पहले समझा था। याद आ रहा है कुछ कुछ, राइट? बोलो। ठीक है, टेकन। अब समझ में आया मॉनेटरी पॉलिसी लैग, जिन स्टूडेंट्स को पहले समझ नहीं आया था, दिस इज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू कवर अप और टू मैनेज योर क्या बोले, अपने पाप या अपने जो समझ नहीं आया था, जो रिवीजन नहीं करा, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। अब ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी लैग। दूसरा क्या होता है, बैंक इसमें ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करता है। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता देता हूँ। बैंक क्या करेगा, इसमें ये बोलेगा कि 5% तो मेरे को लेंड करना है, मतलब अर्न करना है। अब अगर मेरे कस्टमर, मैं बैंक हूँ, मेरे कस्टमर कितने हैं? 200, तुम लोग 200, 210, 20 हो गए होगे, राइट? तो 200 कस्टमर हैं और मान लो कि मेरा जो लेंडिंग पूल है वो 1 लाख करोड़ रुपीस का है। 1 लाख करोड़ पे मैं 5% भी अर्न कर लूँगा, मार्जिन मेरे लिए बहुत है ना। अब मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? मेरे एम्प्लॉयज़ हैं 10,000 एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट अगर मैं आपकी फीस में से, आपको दिए गए लोन में से रिकवर करना चाहूँगा, तो कितना हो जाएगा? छोटे बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेमिसेस उतना ही है, खर्चा उतना ही है, कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फायदा है। एक कंप्यूटर की कॉस्ट उतनी ही है, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फायदा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो 1%, ठीक है। फिर कैश रिजर्व रेशो, हमने ये समझा था कि कैश रिजर्व रेशो पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। वी डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट रेट ऑन कैश रिजर्व रेशो, राइट? I will explain again, don't worry. नहीं मिलता ना, तो जितना पैसा कैश रिजर्व रेशो में रखा है, उसके लिए अगर मैं पर कस्टमर अपने कस्टमर को 6%, कितना कहाँ था ऑलरेडी जो बोरो किए हैं मैंने पैसे, जो बैंक ने पैसे कलेक्ट किए हैं अपने कस्टमर से, उस पे देना पड़ रहा है 6.5%। मेरा इसका कॉस्ट कितना है? 6.5%। मान लो कि मैंने 10,000 करोड़ था ना, तो 10,000 करोड़ का कैश रिजर्व रेशो कितना है? 3%। तो ये एक और
मान लो कि मेरा 0.5% पैसा ऐड हो गया, 0.5% मुझे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही है टोटल निकालते टाइम, मैं ये सारा खर्चा ऐड करूँगा और अपना मार्जिन भी ऐड कर दूंगा कि चलो 1% मेरा मार्जिन, तो 6% पे मेरा पैसा आया, 6.5% पे 1% मैंने मार्जिन ऐड किया 7%, और ऑपरेटिंग 6.5 प्लस 1 7.5, 1% आर माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, काम काज चलाने का खर्चा 8.5, कैश रिजर्व रेशो के चलते मुझे नुकसान हो रहा है 0.5%, 9% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठेगा, ठीक है ना। अब मैं 9% पे लैंड कर रहा हूँ, अब आरबीआई का ऊपर से ऑर्डर आया कि देखो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, आप इसे कम करो। मैंने बोला कि मेरे पास तो पहले से ही पैसे पड़े हैं जो कि मैंने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिटर्स से बोरो करे हैं, वो डिपॉजिटर्स को तो मुझे 6.5% देना पड़ेगा, मैं इसको कम कैसे करूं। आरबीआई बोल रहा है कि पैसा ले लो या यार ले लो, जो भी कार ले लो, जो भी ले लो, मेरे को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके दो। मतलब मार्जिन होता है प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी जब बिजनेस करता है नूतन या कोई भी, तो प्रॉफिट जोड़ता है ना, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहे हैं बैंक, ठीक है। आरबीआई बोल रहा है कि कुछ भी ले लो, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, हम दे रहे हैं ना पैसा। मैं आरबीआई को ये समझाने में मुश्किल में हूं कि मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हूं, मैं 20,000, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई जिन लोगों को नहीं समझ में आया। देखो जस्ट 1 मिनट, एग्जाम्पल थोड़ा सा वियर्ड है, ध्यान से समझना। मैं मैगजीन प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं मैगजीन जो प्रिंट करवा रहा हूँ, मैंने प्रिंटर को बोला कि देखो अभी डिमांड नहीं है, आप जो मैगजीन हमें 80 रुपीज़ में बना के देते थे वो आप 75 रुपीज़ में दो। तो मैंने बोला कि अब तो वो बोल रहा है कि कैसे बना के दो, मैंने बोला कैसे भी बना के दो, पेपर का प्राइस बहुत कम है। ही सेड कि पहले जो पेपर का प्राइस था वो 1 रुपी हुआ करता था, अब जो पेपर का प्राइस है 90 रुपीज़ है, 90 पैसे है। बट जो मैंने जो पहले पेपर ले रखा है 1 लाख पेजेस, उसको मैं कहाँ पे लेके जाऊं। मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप 1 लाख पेजेस और ले लो, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि मैं 1 लाख पेजेस और लूंगा, इस पे मुझे भले ही 5.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1 लाख रुपया तो मेरा ब्लॉक हो रहा है ना, इस पे मुझे 5500 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। वो मैं क्यों दूं जब अभी आपको जो पेपर कंज्यूम करना है मैगजीन में वो सिर्फ 20,000 ही है, जो अभी मुझे लोन देने हैं वो 20,000 रुपीज़ के देने हैं। उसके लिए बैंक ज़्यादा पैसा क्यों बोरो करेगा। आरबीआई ने भले अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं तो भी। अब एक कस्टमर के, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो बैंक जैसा भी बना, ठीक है, बैंक जो है वो ये कह रहा है कस्टमर को कि कस्टमर्स ने बैंक के पास पैसे डिपॉजिट कराए जब रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट था 6.5%, ठीक है। तो बैंक ने एफडी स्कीम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 7% और कस्टमर 6% और कस्टमर्स भागे चले आए, ठीक है। कस्टमर बैंक के पास आ गए, बैंक ने 10,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर लिए। ये सिचुएशन थी जुलाई में। अब अगस्त में आरबीआई को समझ में आया कि ओ फॉर एग्जाम्पल ओनली ग्रोथ इज गोइंग डाउन, ओ नो व्हाट हैज हैपेंड, ग्रोथ गोइंग डाउन। आरबीआई ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट को कम कर दिया। कितना कर दिया, रेपो रेट को 6%, ठीक है। चलो 5.5% सेम ले लेते हैं जैसे पहले एग्जाम्पल में लिया। मैंने आरबीआई को, अब आरबीआई का मेरे पास फ़ोन आता है, टेलीफोन आया एसबीआई के पास कि आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, ठीक है। अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम करूँगा जब मेरा ये खर्चा जो है 6% मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स में मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को ऐड करूँगा, वो सब चीज़ें तो हम समझने वाले हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट और वो सब।
लेकिन इस 6% को एवरेज, सबसे मेजर कॉस्ट तो मेरी यही है ना, ये मेरा रॉ मटेरियल है। मनी इज लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर द बैंक। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जब ज्यादा आ रही है तो बैंक कहां से इसे कम करे? आरबीआई बोल रहा है कोई बात नहीं, कितने पैसे तुम्हारे पास? 10,000 करोड़। मैंने बोला यस। तो उसने बोला तुम एक काम करो, 10,000 करोड़ हमसे बोरो कर लो, रेपो रेट हमने कम कर दिया तुम्हारे लिए, क्या एक्सक्लूसिवली, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को ये बैंक को, आरबीआई को ये समझाना पड़ता है कि इस 10,000 करोड़ पे, पहले तो इस 10,000 करोड़ पे 6% कस्टमर्स को देना पड़ रहा है जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवाए हैं। अब इन सारों को, खर्चों को मिला के, एम्प्लॉय कॉस्ट 1% एक्स्ट्रा मिला के, फिर मार्जिन जो मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ उसको 0.5% मिला के, मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है कितनी? 9%। 9% से नीचे मैं लेंड कर ही नहीं सकता। आरबीआई ये कह रहा है कि आप इस 10,000 करोड़ को और जोड़ लो, अब जो कस्टमर लोन लेने आएगा उसको आप प्रो राटा बेसिस पे 10,000 करोड़ पे 6% देना पड़ रहा है, 10,000 करोड़ पे 5.5%, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5.75%। आप इस पे 8.75% पे, क्योंकि 0.25% कम हो रहा है, आप 8.75% पे लेंड कर दो। लेकिन आरबीआई ये नहीं समझ रहा था, बैंक्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। ठीक है, तो आरबीआई ने बोला चलो तुम एक काम करो, सारा अपना खाता दिखाओ कि तुम्हारे खर्चे क्या क्या हैं। तो फिर निकल के आया कि बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर समझ में आया बैंक के कैश रिजर्व रेशो बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे से कैश रिजर्व रेशो, जो परसेंटेज ऑफ फंड्स बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करने पड़ते हैं, आरबीआई उन्हें धीरे 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 से परसेंटेज लो करता गया, कम करता चला गया। ठीक है, पुराना पैसा जमा कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पुराना पैसा जमा कर देंगे और नया ले लेंगे। बट इसमें प्रोसेस में समझो कि पुराना पैसा जो जमा कर रहे हैं उस पर तो 0.5% का डिफरेंस है ना। जो पुराना पैसा हम जमा करेंगे वो करेंगे 5.5% पे, ठीक है, नया पैसा मिलेगा 6% पे, आधे परसेंट का तो लॉस है ना। वो आधे परसेंट जब 10,000 करोड़ पे लगाओगे तो आपकी और मेरी, हम सबकी गरीबी दूर, और प्रधानमंत्री भी खुश। समझ में आया? अब इसलिए बैंक ने धीरे धीरे रेशो को, द रेशो ऑफ फंड्स दैट अ बैंक नीड्स टू डिपॉजिट दैट अ बैंक नीड्स टू कीप विद इटसेल्फ, वो कम करना पड़ा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बड़ा एलिमेंट होता है इसमें। अब बेस रेट से भी क्लैरिटी हुई नहीं। फाइनली आरबीआई ने बैंक्स को बोला आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड, प्लीज राइट डाउन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट लेके आओ। प्लीज राइट डाउन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। समझ में आया? अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट क्या है? 2010 से लेकर 2016 तक ये चला बेस रेट सिस्टम। ठीक है, अब इसको एबॉलिश कर दिया गया, अब आ गया ये, दिस इज द न्यू वन, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू बेस रेट बिलो विच द बैंक्स कैन नॉट लेंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पता है क्या है? वेटेड एवरेज। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में बैंक्स को ये बोला गया कि जो पैसा पहले आ रहा है, ठीक है, उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दो और ये सब कर लो। सेम चीज जो कॉस्ट ऑफ फंड्स था, ये क्या था? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब कि जो पैसा नया बोरो किया है उस पर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा पुराना है उस पर पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इसमें एक नई चीज ऐड करी गई, मार्जिन। हर लोन पे आप सेम मार्जिन नहीं रख सकते कि बैंक्स को बोला गया कि हर लोन, हर दिए जा रहे लोन पे आप 0.5% रखोगे तो फिर दिक्कत है। जो छोटी अवधि के लोन है उस पे टेन्योर प्रीमियम, टेन्योर मतलब द पीरियड फॉर विच द लोन इज बीइंग बोरोड, इस पे टेन्योर प्रीमियम होगा। अगर 5 इयर्स का लोन है तो 0.25%, दिस इज फॉर जस्ट एग्जांपल। अगर 10 इयर्स का लोन है तो 0.30%, क्योंकि द लॉन्गर द टेन्योर द हायर द रिस्क।
आज मैं अमीर हूं, आज कल विजय माल्या भी अमीर था, ठीक है, कल को गरीब हो गया तो 10 साल का कुछ पता नहीं है, 15 साल पे 0.35%, 20 साल पे 50%, मतलब 0.50% आप ऐड करोगे मार्जिन, ठीक है। मार्जिन आपका बढ़ते, बैंक जो है मार्जिन को कम कर देगा, तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को, मतलब जो टेन्योर प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब अगर टोटल इंटरेस्ट रेट जो है 50%, पहले इसमें 30% डिटरमाइन होता था कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से। आरबीआई की कोशिश ये थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% निकल रहा है तो वो 50 से भी ज़्यादा परसेंट इस पे डिपेंड करे, उसका 4% इस पे डिपेंड करे, 4 से भी ज़्यादा परसेंट। बाकी का जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये इतने कम हो जाएं कि कॉस्ट ऑफ फंड जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, ये फालतू की इनएफिशिएंसीज वगैरह बैंक्स की कम करी जाएं। इसीलिए बैंक्स को गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया, जो नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस हैं उनको वाइंड अप किया जाए, वाइट लेबल एटीएम्स लेके आए जाएं। यानी कि आप देखते थे कि जैसे कुछ कुछ सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के या कहीं के, आप अपने एरियाज में भी देख सकते हो, पहले क्या होता था कि हर चौथी प्रेमिसेस में बड़े और कॉरपोरेट एरिया में बैंक 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 दिख रहा है। एक दुकान एक यहाँ पे एक बैंक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे जाओ चाय पकौड़े और ये सब की दुकान है, फिर दोबारा एक और बैंक। मतलब इतने नोट नहीं होते जितने बैंक खुल गए, रेंटल कॉस्ट बढ़ रही थी, इसलिए इन तीनों को कम करने की कोशिश की वजह से ये वाला कंपोनेंट लाया गया, जिसमें कि ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करे, ताकि जब कभी आरबीआई रेपो रेट डाउन करे तो ये रेट, टोटल जो रेट ऑफ लेंडिंग दी फंड्स होगा वो कम हो जाए और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन और ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब समझ में आया सबको? शालू, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक बैंक है जिसका नाम है शालू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, देखना अभी। शालू बैंक, ठीक है। शालू, आपने क्या किया, आपका एक बैंक है, उस बैंक में आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मैं उसमें कस्टमर हूँ, मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 7%, ठीक है। आपने मेरे को बोला कि जतिन आप एफडी कराओ, मैंने आपको दे दिए 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, चलो 10,000 रुपये, ठीक है। अब आरबीआई ने उस टाइम पे, जब आपने मेरे से जुलाई में पैसे लिए, तो आरबीआई ये कह रहा था कि अगर आपको पैसे चाहिए हो रेपो रेट पे तो आप आरबीआई से पैसे ले सकते हो, कितने में, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो 6.5% आप आरबीआई से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते थे, आपने 6.5% पे आप आरबीआई से ले सकते थे, आपने नहीं, आप आरबीआई से ले सकते थे 7.5% पे, ठीक है। आपने मेरे से 7% पे ले लिए, डन। और अब आप कितने पे लैंड करोगे, अपना खर्चा पानी जोड़ के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये सारा कुछ जोड़ के कितने पे लैंड करोगे, 9% पे। ऑल ऑफ अ सडन अगस्त में आपके पास 10,000 पड़े हैं, ठीक है, या 10,000 करोड़ पड़े हैं मान लो, आपको एक कस्टमर को देने हैं जिसका नाम है अभिषेक, ठीक है। अभिषेक को आपको ये लोन देना है। अब आरबीआई ने ये बोला कि आप ये लोन जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करने को कह रहा है आरबीआई? आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 6.5%। आरबीआई आपको कह रहा है कि आप ये पैसे को, अभिषेक को जो अब लेंड करोगे अगस्त में, आप कितने पे लेंड करो, 8.5% पे। क्या आप करोगे? बोलो जल्दी, क्या आप करोगे इसे लैंड? जब आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी पड़ रही है, आपने जतिन वर्मा से पैसे लिए 7% पे, आप क्या ये पैसा जो 7% पे आपने लिया है, क्या इसको अभिषेक को जो पैसे देने हैं आपको 8.5% पे आप लैंड करोगे? जबकि आपको ये सारा खर्चा पानी जोड़ के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है 9%। आपके पास ऑलरेडी 10,000 करोड़ रखे हैं,
जतिन वर्मा जैसे बहुत सारे कस्टमर्स से आपने पैसे कलेक्ट किए, क्या सिर्फ इसलिए कि आरबीआई ने आज यानी कि अगस्त में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया है, लेकिन आपने तो पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे बोरो करे थे, आपने तो पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे से पैसे लिए थे ना। उस महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने प्रोसेस किया, आपने उसका लोन का एक प्रोडक्ट बनाया कि वो लोन ले लो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश रिजर्व रेशो की वजह से हुए नुकसान को आपने ऐड कर दिया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, आपकी ब्रांच में जो एसी चलता है उसका बिजली का खर्चा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खर्चा, जो एटीएम आपका चल रहा है जिस पे कभी कोई नहीं जाता, उस सब का खर्चा, उसका रेंट, ब्रांच का रेंट, सारा खर्चा जोड़ के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है 7% प्लस 2%। फिर आपको कुछ पैसे कमाने भी हैं, उस 2% में 0.5% आप मार्जिन भी लेके चल रहे हो, नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना उतने पे, क्योंकि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अंकिता आई विल एक्सप्लेन योर पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन योर डाउट लेटर ऑन, जस्ट 1 मिनट। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स ही महंगी है, तो आप नहीं दोगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ। इसीलिए बैंक्स को बोला गया कि तुम जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है कुछ इस वे से कैलकुलेट करो, ये पुराना तरीका भूल जाओ। मार्जिन वार्जिन अपना सब ठीक है, मार्जिन को जो अब आप कैलकुलेट करोगे वो आप टेन्योर के हिसाब से प्रीमियम ऐड करोगे। हर लोन पे ये नहीं है कि आधा % आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए। हर लोन पे, हर दिए गए पैसे पे आपको एक जैसा बैंक्स को मार्जिन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लोन लंबे टेन्योर का है तो उस पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई लोन छोटे टेन्योर का है तो उस पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि टेन्योर प्रीमियम जब हम लोन बोरो करते हैं 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स में रिस्क कम है ना, पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 5 ईयर्स में फिर भी पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 5 ईयर्स पे तो जो रिस्क है 0.25% आपने मार्जिन ऐड कर दिया। 5 ईयर्स के लोन पे भी आधा % नहीं लगाओगे, जैसे आप पहले 0.5% प्रीमियम ऐड कर रहे थे, अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट के हिसाब से आप पुराना आधा % का मार्जिन नहीं जोड़ोगे, आप सिर्फ 0.25% जोड़ोगे। जब लोन लिया जाएगा तो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में थ्रू आउट दी फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ द लोन 5 ईयर्स के लिए 0.25% जुड़ गया। अब अगर लोन है 5 ईयर्स से ज़्यादा, 10 ईयर्स से कम, तो 0.30, 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से कम, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये 30 पैसे 0.30% और जुड़ जाएगा, या 30 बेसिस पॉइंट्स और जुड़ जाएगा। फिर इससे क्या होगा, बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, आरबीआई यही चाहता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था कि आरबीआई 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के रेपो रेट लेके आ रहा है। आरबीआई को अगर लगता है आने वाले 1 साल में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो जो लोग 1 साल का लोन बोरो करने जा रहे हैं उस पर 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेन्योर प्रीमियम है। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ा रोल प्ले करेगा किसमें, इंटरेस्ट ओवरऑल, मतलब जो रेपो रेट है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन में। तो जब आरबीआई का पर्पस जो है तब फुलफिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट की वजह से अगर 50% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, 50% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेपो रेट की वजह से डिटरमाइन हो रहा है, और जब कभी रेपो रेट कम या ज़्यादा होगा तो ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम या ज़्यादा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बिल्कुल जो है स्टैटिक होके रह जाए। आरबीआई बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर रहा है ताकि बैंक्स जो हैं अभिषेक जैसे लोगों को और लोन दें, और अभिषेक आगे व्यापार बढ़ाएगा, प्लांट लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन बैंक्स जो हैं अपने ही कामकाज में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसे डिटरमाइन कर रहे थे, ये तीनों वेरिएबल्स आरबीआई के कंट्रोल में नहीं थे।
इन तीनों वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने के लिए आरबीआई ने काफ़ी कुछ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए गवर्नमेंट के साथ मिलके। आरबीआई ने ये कहा कि ये मार्जिन अब कुछ टेनोर प्रीमियम के हिसाब से डिटरमाइन करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को कहा कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, इसलिए आरबीआई के द्वारा अनाउंस किए गए रेट कट के बावजूद भी, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होने के बावजूद भी ये सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% प्लस 2% या फिर किसी किसी बैंक के केस में 3% बढ़ जाता है। अब इनको कम कर दिया जाएगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या हो गया? रेपो रेट 6%, 5%, ये मतलब है। समझ में आया? तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे उन पे प्रॉफिट कॉम्पेंसेट होगा। कॉम्पेंसेट तो तब होगा जब कोई प्रॉफिट बैड डेट लोन जो है बैड डेट हो गया, तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे उनसे प्रॉफिट कॉम्पेंसेट नहीं होगा। ये कह सकते हो कि प्रॉफिट, देखो 5 साल की लोन की रिकवरी का जो इंश्योरेंस रेट होता है, मैं अगर बैंक हूँ ना, तो मैं अगर 5 ईयर्स का लोन दूंगा तो 5 ईयर्स के लोन को मैं इंश्योर करवा लूंगा। अभिषेक का क्या भरोसा विजय माल्या हो गया, तो समझ में आया? उसके चार्जेस कम लगते हैं। अगर वो 15 ईयर्स का लोन होगा तो फिर मेरे को विजय माल्या की ज़िंदगी पे भी एक इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा कि ऑलरेडी 65 ईयर्स के हो गए हैं, लोन देते देते 80 ईयर्स के हो गए, अगर चल बसे तो ठीक है। तो टेनोर प्रीमियम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कॉम्पेंसेट नहीं होता। 0.25% अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है मार्जिन। मतलब अगर किसी बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए लेंड कर रखे हैं, उस पर 0.25% मिल जाए हर साल, क्या बुरा है? समझ रहे हो? बैंक्स अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन बाय दी बैंक्स। बैंक्स एक कस्टमर से 2-4% निकालने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। समझ में आया? अब अंकिता, आपका डाउट मैंने बीच में आंसर कर दिया था, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद जो है लोन बढ़ेगा, नहीं। अगर 15 साल का लोन है उस पर फर्स्ट डेट से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है 50 पैसे ऐड हो जाएंगे, 0.50% ऐड हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आरबीआई इज नॉट ट्राइंग टू ऑपरेट। आरबीआई की रेपो रेट में और बैंक के इंटरेस्ट रेट में जो तालमेल है, जो लेन देन है, वो स्ट्रांग हो गया है। रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो गया है। समझ में आया? यार एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, उसे समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक हलवाई हूं तो मैं दूध खरीद रहा हूं किसी से और मैं उसको पनीर में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं, हलवाई मुझे ये कह रहा है, हलवाई है यहाँ पे, दूध वाला मुझे ये कह रहा है, दूध वाला कौन है? आरबीआई। दूध वाला मुझे ये कह रहा है कि मैंने दूध का दाम कम कर दिया, मैंने पर लीटर प्राइस ऑफ मिल्क कम कर दिया, तुम्हारे पनीर का प्राइस कम क्यों नहीं हुआ? मैं दूध वाले को ये कह रहा हूँ कि मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ खा जाते हैं या कुछ, और क्योंकि पनीर को 4 घंटे फ्रिज में रखना पड़ता है तो 4 साल के या 4 घंटे के पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए मेरे को कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ पनीर बढ़ा के रखना है। दूध वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि तुमने जो है दूध सस्ते में लिया, फिर भी तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट क्यों नहीं किया, फिर भी तुमने प्राइस ऑफ चीज़ कम क्यों नहीं किया। मैं उसको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक झोल है, वो झोल क्या है मैं उसको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे समझाना नहीं चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे मुनाफाखोरी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रॉफिट हियर फ्रॉम द सिचुएशन। लेकिन अब वो मेरे इतने पीछे पड़ गया दूध वाला आरबीआई कि वो ये बता रहा है, बताओ तुम्हारी कॉस्ट कितनी, बताओ तुम टेन्योर के लिए 5 साल के लिए कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 5 साल में अपना मुनाफा जो है तुम 5 साल वाले से भी सेम लोगे, 10 साल वाले से भी सेम लोगे, ये तो गलत है ना। तो 5 साल वाले के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो प्रीमियम जो तुम ऐड करते हो, जो अपना मार्जिन जोड़ रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन, उसको कम करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए सरकार मेरे पास आ गई, सरकार ने बोला जो लॉस मेकिंग ब्रांचेज हैं उनको बंद करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करो, कंप्यूटराइजेशन लेके आओ, एम्प्लॉयज़ को कम करो, बैंक्स में अपॉइंटमेंट कम करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। आरबीआई ने फिर कैश रिजर्व रेशो को भी धीरे धीरे से कम करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, ये तीनों फैक्टर हो गए कम, डिटर्मिन मतलब ये हो गए ट्रांसपेरेंट, बचा रेपो रेट, बचा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो रेपो रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अब तो ठीक है।
अब समझ में आ जाना चाहिए। यूपीएससी ने इंटरव्यू के मार्क्स कम कर दिए 2013 में। क्यों कम किए? क्योंकि एक आईएएस निकलता कैसे है ये तो पता लगे। वहाँ पे 300 थे, 275 मार्क्स कर दिए, है ना, ये मतलब है यहाँ पे। और क्या किया यूपीएससी ने? कहा कि ये जो लैंग्वेज पेपर हैं फालतू के, इनको हटा दो। लेकिन उसके अराउंड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया कि लैंग्वेज पेपर नहीं हटने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वांटेड ट्रांसपेरेंसी, like RBI is asking for transparency in the process of determination of rate of interest, so that whenever RBI comes up with the rate cut or rate increase, it should be very logically transferred by the banks to the customers. Clear? Clear to everyone? Now ये सारा इसका मतलब था, ठीक है। इसीलिए कैश रिजर्व रेशो को धीरे धीरे से कम किया जा रहा है। ये सारा कुछ यहाँ पे रिटन में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे। अब आते हैं एंकर पे। फिर भी ना अभी एमसीएलआर होने के बावजूद भी रेट कट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही। तो आरबीआई ने बैंक्स को ये बोला कि अब एक काम करो, तुम एक एंकर चूज कर लो। उस एंकर में अगर कमी होगी, या तो वो एंकर हो सकता है डॉलर के प्राइस विज़ावी रुपी। अगर रुपी में डॉलर का प्राइस कम होगा तुम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे। अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे, ठीक है। या फिर अगर रेपो रेट कम होगा तो तुम उससे टाई कर लो, या इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होगी तो तुम उससे टाई कर लो। यानी कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से कम होगा ये आप इन वेरिएबल्स के हिसाब से तय कर लो। आरबीआई ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हारी ऑपरेटिंग रेशो कितनी है या कितनी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं रेपो रेट कट करूँगा तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे या नहीं करोगे। आरबीआई क्यों ऐसा कह रहा है? आरबीआई ये चाहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो तुम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो। either reduce your rate of interest when inflation is increasing, or reduce your rate of interest when repo rate I am reducing. Choose any one anchor. रेपो रेट को डिटरमाइन करने के लिए बैंक इन चारों में से 3-4 वेरिएबल्स में से कुछ भी चूज कर ले, बट प्रिडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट लेके आओ। प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट क्यों? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कट होगा ये तो पता लगे ना। मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करना चाहता है सो दैट इट कैन ब्रिंग अबाउट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी। ग्रोथ लानी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ज़रूरी है। अब आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करता है तो बैंक उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रखते हैं। अब आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करता है तो कम नहीं किया, कम करता है तो ज़्यादा कम नहीं किया, बैंक्स ने कम नहीं किया, बैंक्स कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते। इसलिए बैंक्स को बोला गया कि देखो मैंने रेपो रेट कम किया है तुम भी कम करो। बैंक्स ने बोला कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ये और वो, तो अब बोला कि भैया तो फिर इन्फ्लेशन चूज़ कर लो, ठीक है। तो बोले इन्फ्लेशन भी नहीं, क्योंकि हमारे जो है कुछ बैंक्स ने बोला कि हमारे एक्सपोर्ट ऑपरेशंस हैं, तो एक्सपोर्ट ऑपरेशंस में हमारे रुपये की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, इसीलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखना पड़ रहा है, ताकि जो हमें ईएमआई आएगी उसको जब हम डॉलर्स में आएगी उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 70 रुपीज़ जो पहले हुआ था जब हमने लोन दिया था अब वो 65 रुपीज़ हो गया, तो हमारा नुकसान हो गया। तो बैंक ने बोला कि चलो तुम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बैंक्स हैं, जो बैंक्स जो हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लोन्स ज़्यादा देते हैं, वो ये वाला एक्सचेंज रेट को अपना एक एंकर मान लो कि तुम एक्सचेंज रेट के हिसाब से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज़्यादा करोगे। जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन चुन लें या रेपो रेट चुन लें। आरबीआई सिर्फ इसमें पासिंग ऑन चाहता है कि आप पास ऑन तो करो रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब समझ में आया ये? अगर किसी बैंक को रेपो रेट को
चूज़ करने में प्रॉब्लम है कि रेपो रेट पसंद नहीं आ रहा, रेपो रेट के हिसाब से कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो रही, क्योंकि कुछ और वेरिएबल्स हैं इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के रास्ते में। समझ में आया? ये कितनों को नहीं समझ में आया? दिस इज समथिंग लाइक सेइंग, आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि तुम अपने मार्क्स इंप्रूव करो, ठीक है, तुमने बोला कि नहीं मैं मार्क्स इंप्रूव तब करूँगा, मैं मार्क्स सिर्फ इसलिए इंप्रूव नहीं करूँगा कि मार्क्स इंप्रूव करने ही करने हैं, मैं बीमार होऊंगा तो मार्क्स कम होंगे तो आपको आरबीआई यानी कि आपके पेरेंट्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं मार्क्स ये देखा जाएगा कि पड़ोसी जो है उसका नाम जो है पप्पू है, उसके मार्क्स कितने आए हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, ठीक है। आरबीआई वांटेड बैंक्स टू चूज एक्सटर्नल एंकर्स, ओके, इसको एंकर बोला जाता है। डन। आरबीआई इसे 1 अप्रैल 2019 से इम्प्लीमेंट करना चाहता था, बट ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, बार बार इसमें एक्सटेंशन चलती रही। क्लियर है सबको? जिनको नहीं समझ में आ रहा था पहले उनको भी क्लियर है? एक मिनट कमेंट्स देखने दो। समझ गए? ठीक है। बेंचमार्क्स, बैंक 4 ऑप्शंस दी गई थी, उसमें से जो भी चूज करना है बैंक्स वो कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। I just want to show you that clipping. तो ये था इस एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के बारे में। क्लिपिंग इज समथिंग आई विल शो यू और आई विल पुट इट इन योर पीपीटी, राइट। ये पीपीटी वगैरह मैं ऐड कर दूंगा। इन्फ्लेशन, रेपो रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, रेपो रेट, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेजरी बिल्स। 4th वन इज ट्रेजरी बिल पे क्या रेट चल रहा है। कोई कोई बैंक ये बोलता था कि हमने जो है ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और ट्रेजरी बिल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, यील्ड का फिनोमेना मैंने समझाया था, जो यील्ड है वो कम हो रही है, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेपो रेट, जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट किया है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तो हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% कैसे कर दें। कोई बैंक ये कहता था कि हमने जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है या हमने जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के जो पैसा लिया है वो है 9%, बोरो हमने जिस कॉस्ट पे किया है, तो ट्रेजरी बिल्स पे जो रिटर्न मिल रहा है उस बेसिस पे भी बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स डिसाइड कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस, ठीक है।
अब ये समझ में आ गया। देखो ये पता होना चाहिए कि एंकर का मतलब क्या है। यूपीएससी इतनी डिटेल में नहीं जाएगी कि पूरा बताओ मॉडलिंग करके या कुछ, ठीक है। डन। नाउ मॉनेटरी टारगेटिंग एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज, हम कहाँ से डिविएट हुए थे, चॉइस ऑफ नॉमिनल एंकर, ठीक है। व्हाट इज नॉमिनल एंकर? अ ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क. Broadly, following types of nominal anchors can be described with their advantages. मॉनिटरी टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए. इनकम टारगेटिंग, ये आरबीआई जो एंकर्स यूज करता है ये वो हैं. एक्सचेंज रेट को टारगेट करने वाली मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट को टारगेट करते हुए चलाए जाने वाली मॉनिटरी पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? आरबीआई का नॉमिनल एंकर ये है. बैंक के जो एंकर्स हैं जो मैंने आपको समझाए वो बैंक के एंकर्स हैं. Banks can choose one of these variables, one out of the 4 variables as the determinant of rate of exchange. Here RBI जब अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को चला रहा है तो RBI की मॉनिटरी पॉलिसी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? क्या वो मॉनिटरी टारगेटिंग को, इन्फ्लेशन रेट को टारगेट कर रही है, इन्फ्लेशन का रेट कितना होगा, ठीक है। क्या वो नॉमिनल इनकम को टारगेट कर रही है कि रियल इनकम एक पर्सन के हाथ में कितनी होनी चाहिए? नॉमिनल इनकम यानी कि जीडीपी रेट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्या वो एक्सचेंज रेट को टारगेट कर रही है कि रुपी का, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन को मैनेज करना है तो एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, जब हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल महंगे रेट पे आने लगेगा तो इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी. इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज when the cost of goods and services in the economy, in the domestic economy increases because of increase in the price of imported items like crude oil, बताया था. तो इसीलिए क्या कोई कंट्री में कोई बैंक अगर डॉलर के कंपैरिजन में रुपए के एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हुए चल रहा है तो उस आरबीआई का नॉमिनल एंकर कौन हुआ? एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट को उस लेवल पे मेंटेन करके रखना है, उस हिसाब से आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करोगे, आरबीआई करेगा. अगर 70 रुपीज़ का पर डॉलर है, अगर डॉलर की वैल्यू हो जाती है 73 रुपीज़, तो हमारा रुपी की वैल्यू डिटेरियोरेट हुई ना, डेप्रिशिएट हुआ. रुपी जो है, रुपी हैज डेप्रिशिएटेड, 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं डॉलर के कंपैरिजन में, राइट. तो इसको हमें 70 पे दोबारा लेके आना है, आरबीआई को इसको 70 पे दोबारा लेके आना है. सो हेयर द ट्रिगर फैक्टर फॉर आरबीआई टू स्विंग इनटू एक्शन वुड बी द फॉल इन द रुपीज रेट ऑफ एक्सचेंज वीज़ावी डॉलर. 1 डॉलर के लिए हमें 3 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं. तो अब आरबीआई इस केस में क्या करेगा? आरबीआई इस केस में रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? लोगों के पास में रुपीस ज़्यादा हो गए, लोगों ने क्रूड ऑयल ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया, गोल्ड ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया, दुबई में हमारे रुपए जाने लग गए. आरबीआई विल increase the repo rate so that people bring in more deposits into India. People feel like saving with the banks. ठीक है, लोग फिर अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे आईफोन पे, लोग अपने पैसे बैंक के पास डिपॉजिट कराएंगे, तो एक्सचेंज रेट मैनेज हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है ना, ये तो सबको क्लियर है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो सकता है, मनी सप्लाई, मॉनिटरी टारगेटिंग और इन्फ्लेशन टारगेटिंग में क्या है? ओवरऑल मनी सप्लाई को मैनेज कर रहा है आरबीआई. प्राइस लेवल, ये तीनों मिलते जुलते हैं, बस ब्रॉडली समझ आना चाहिए. ठीक है, पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा. पॉइंट नंबर 1, 4 एंड 5 आर सिमिलर टू वन अनदर. ठीक है, मॉनिटरी टारगेटिंग एक्सप्लेन्ड है यहां पे. Exchange rate, nominal anchor of exchange rate fixes the inflation rate for internationally traded goods and thus landing cost. इंडिया में क्रूड ऑयल की देखो, बाहर है रुपये का क्रूड ऑयल का प्राइस हो $55 पर बैरल, ठीक है, बट हमारे लिए ये मैटर करता है कि ये डॉलर की वैल्यू हमें कितनी देनी पड़ रही है. हम इसकी लैंडिंग कॉस्ट ऑफ ऑयल को मैनेज करने के लिए हमारा रुपी
$1 के एक बैरल के लिए हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, हम तो वो मैनेज कर सकते हैं ना. दैट इज समथिंग विच इज़ इन RBI's कंट्रोल. अब ये बैरल का प्राइस थोड़ी ना हमारे कंट्रोल में है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान और जो चल रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, वो देखेंगे कि भाई क्या करना है. हमारे हाथ में ये है. तो अब ऐसी सिचुएशन में RBI क्या करेगा, रुपये की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, 73 रुपीज़ नहीं होने देगा. ये मतलब है इसका, ठीक है, एक्सचेंज रेट टारगेटिंग का. इन्फ्लेशन टारगेटिंग के वैसे ही अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. PPT हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड, यू हैव टू रीड इट. इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, आई एम हियर. रिकमेंडेशंस को और कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दी. पर्सी एस मिस्त्री, ठीक ठाक सी पढ़ लेना, अब उसमें घुस मत जाना कि सर ये क्या होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं ऑलरेडी, राइट. तो RBI can choose either of these. RBI in India is following a blend of this. कभी कभी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो RBI ये फैक्टर, जब जैसे इन्होंने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ, RBI follows inflation targeting, exchange rate stability, जो मैंने 6 बताए थे ना कि 6 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो यही 5-6 ही आ जाएंगे, ठीक है. मेनली इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है. ग्रोथ को भी ध्यान में रखना होता है तो नॉमिनल इनकम टारगेटिंग भी आ जाता है. डन. RBI इज फॉलोइंग दीज 3 ब्रॉडली. FSLRC, we will be studying this in detail. Choice of inflation metric. RBI should adopt the new CPI combined as the measure of nominal exchange rate. तो ये सारा कुछ पढ़ लेना थोड़ा सा. Nominal anchor for target inflation should be 4%. ये हमने पहले देख लिया है, ठीक है. टाइम होराइजन ऑफ अटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ है. इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रूल्स अमेंड करे गए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई, रिकमेंडेशंस ऑफ अर्लियर कमेटीज़, ये सब कुछ कहा गया. 2006 में क्या कहा गया, पढ़ लेना एक बार, एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि है क्या, ठीक है. दिस इज़ व्हाट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड नाउ. अब चलते हैं फिस्कल पॉलिसी की ओर. Just a minute, guys. Fiscal policy. What is fiscal policy? Please write down. The new chapter starts. If you want to write new chapter, you can write it that way. Fiscal policy
in general is the policy of income and expenditure of Government of India. Arshika, please wait. It is the means by which government seeks to influence a nation's economy. It is the means by which the government seeks to influence a nation's economy by changing tax rates, disinvestment, by changing tax rate, disinvestment, borrowing from banks, borrowing from the financial system, borrowing from the financial system, giving tax concessions, giving tax concessions, allocating slash changing, allocating or changing the proportion of money, proportion of expenditure, allocating or changing the proportion of expenditure being incurred on, proportion of expenditure being incurred on different sectors, which are VIZ, agriculture, manufacturing, telecom, transport, real estate, etc. ठीक है, जिससे हम टैक्सेस वगैरह को लगाते हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है. ठीक है. नाउ कमिंग हियर, public finance is a study of income and expenditure of the government at the central, state and local levels. Government has to perform certain functions in a country, such as to supply public or collective goods. ठीक है. Building roads. In the narrow sense, public finance is defined only as the study of income and expenditure of the government. But the broader view is that public finance
does not deal with the income and expenditure of the government alone, but also these days it goes deeper into it as to how the money is being collected, how it is being spent. If we are monetizing the deficit, if we are printing more money, if we are taxing people more, right? There has to, fiscal policy has to take care of many things. सेक्टोरल बैलेंस, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ग्रोथ कितनी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ कितनी आ रही है, बैकवर्ड रीजन्स तो नहीं है कंट्री में, रूरल इंडिया में क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, अर्बन इंडिया में क्या अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, रियल एस्टेट के प्राइजेस तो नहीं बढ़ रहे, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए की जाती हैं, ठीक है। रवि प्लीज़ कॉपी पेस्ट अगेन। तो ब्रॉडर व्यू ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, पब्लिक कंपनीज एटसेट्रा, द वे द मॉडर्न गवर्नमेंट्स मैनेज ऑल द मनी दे गेट, दैट इज पब्लिक मनी, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिस्कल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, राइट, ये सारा कुछ, बजट डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट कितना है, ये सारा कुछ, मनी कहाँ से बोरो की जाए, किस टाइम पे बोरो की जाए, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या नहीं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पॉलिसी स्टैंड्स टेकन इन दिस रिगार्ड इज डिक्लेयर्ड एनुअली बाय द गवर्नमेंट्स वाया देयर फिस्कल पॉलिसी, पॉपुलरली नोन एज द बजट। सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट, यस, ठीक है। Budget, an annual financial statement of income and expenditure, is generally used for a government, but it could be of a firm, of an individual like you and me, company, corporation, etc. Constitution of India has a provision, Article 112, for such a document called Annual Financial Statement, to be presented in the Parliament before the commencement of every new fiscal year, popular as union budget. Some provision is there for the states as well. तो यूनियन बजट में कितने टाइप का डेटा होता है ये सब थोड़ा सा कल देखेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा, पहले मैं इन जनरल बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मीनिंग नहीं क्लियर, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मीनिंग नहीं क्लियर, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, लिखा है नहीं लिखा है वो अलग बात है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। इन जनरल मीनिंग क्लियर है, सब्सिडीज देना, किस सेक्टर को सब्सिडी देनी है, किस सेक्टर को नहीं देनी, वो सब चीजें। क्लियर है सबको? ओके, नाउ द टाइम फॉर योर डाउट्स। Doubts, Arshika, you had some doubt, and others? Rediscounting facility I had explained in a very elaborated manner. Rediscount का मतलब होता है
कंपनी ए, कंपनी बी, ठीक है। कंपनी बी ने कंपनी ए को एक बिल दिया, कंपनी ए ने कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करे थे कंपनी बी को। अब ये बिल है, बिल कंपनी ए बैंक के पास ले गई, ये बिल पे लिखा है 1 करोड़ रुपीज़, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया 4 लाख रुपीज़, 96 लाख रुपीज़ दे दिए। अब ये बिल मैच्योर होगा दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में बैंक के पास पैसे आ जाएंगे, बिल दे देगा बैंक कंपनी बी को, बिल दे दिया और पैसे ले लिए 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। बट अगर दिसंबर से पहले बैंक ने क्या किया, इसे डिस्काउंटिंग दी बिल कहते हैं, डिस्काउंट हो गया ना, लिए था बिल 1 करोड़ रुपीज़ का, दिए 96 लाख रुपीज़, डिस्काउंट हो गया ये बिल। बट अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में बैंक को पैसे ज़रूरत पड़ेंगे तो बैंक आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई इस बिल को रीडिस्काउंट करके देगा। 96 लाख रुपीज़ है, 1 करोड़ का बिल है, आरबीआई इसको बैंक को 98 लाख रुपीज़ दे देगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग, ठीक है। Done. How is economy of a developing country supply driven, whereas if a developed country demand driven? Okay, demand driven वहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, पैसे कम हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में पैसे कम हैं, तो लोगों को वहाँ पे पैसे कम, परचेजिंग पावर कम होने के टाइम पे जेन्युइन मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे कमोडिटीज़ चाहिए, राइट। दैट इज़ व्हाट मेक्स अस द सप्लाई ड्रिवन, राइट। तो वी आर सप्लाई ड्रिवन। और दूसरा इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। यूएसए में सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, आप जो मांगो आपको मिल जाएगा, आप प्राइस दे दो। हमारे यहाँ पे सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्या हम अपने यहाँ पे ऑयल सीड्स खुद से अपने उगा पा रहे हैं? नहीं। क्या हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर है? नहीं। क्या हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर 58% 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं? नहीं। क्या हम अपने टॉयज़ बना पा रहे हैं? नहीं। क्या हम अपने क्रैकर्स बना पा रहे हैं? चाइना, राइट। ये मतलब है इसका। देयर इट इज़ demand driven. There in USA, in developed countries, Tata and Maruti example, in USA and other countries demand has to be there, okay, they are demand driven. Here we are supply driven. Yes. Salsabil, macroeconomic stability means stability of income, स्टेबिलिटी ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी, ठीक है। एक छोटे लेवल पे प्याज के दाम बढ़ जाएं तो वो क्या है? माइक्रो। एक विलेज में प्याज के दाम बढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेबल चलता रहे, ज़्यादा उतरना गिरना ना हो उसका, इन्फ्लेशन स्टेबल रहना, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट स्टेबल होना, करेंसी का एक्सचेंज रेट स्टेबल होना, ये है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्टेबल स्टडीज। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, यही सब है ना, घर पे माहौल ठीक होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्सचेंज रेट सेम होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार जो है एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो एक्सपोर्टर कोई प्राइस डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा। एक्सपोर्टर ने आज कुछ इंपोर्ट करा महंगे दाम पे, कल रुपये का प्राइस गिर गया तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे डॉलर के कंपैरिजन में, ठीक है। एक्सपोर्टर ने $100 का कुछ परचेज करा, उसको लगा कि 70 रुपीज़ पर डॉलर प्राइस है तो 7,000 दे के छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इंपोर्टर ने बाद में देखा कि रुपये का प्राइस, जैसे ही वो कमोडिटी इंडिया में पहुंची, रुपये का प्राइस हो गया 73 रुपीज़ टू एवरी डॉलर, तो उसको 7300 देने पड़ेंगे। ये क्या है? इंस्टेबिलिटी है। क्या ऐसी इंस्टेबिलिटी में कोई बिजनेसमैन डिसीजन लेगा? नहीं लेगा।
Macroeconomic instability should not be there. Deficit financing is financing the deficit by borrowing in 4 or 5 ways. Borrowing from public, borrowing from World Bank, borrowing from RBI, right? Or financing the deficit by disinvesting the money in public, disinvesting the stake in public sector banks. Public sector banks के shares को बेच देना, ये है deficit financing. The ways in which the government finances its deficit is called financing of deficit or deficit financing. What about 2 lakh rupees? Will the commercial bank not get it? Because RBI is here to earn this 2 lakh rupees. देखो, अगर तो ये बैंक अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लेता तो बैंक की 4 लाख कमाई थी अपने ही पैसे से. अब क्योंकि बैंक किसी दूसरे से ले रहा है तो दूसरा RBI भी तो प्रॉफिट लेगा ना इसमें, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा खुद से मैनेज नहीं किया. भाई मैं अगर खुद पकौड़े बना के बेचूंगा तो मैं 4 रुपये कमाऊंगा. अगर मैं किसी दूसरे से पकौड़े ला के दूंगा तो मैं 2 ही रुपये कमाऊंगा, क्योंकि 2 रुपये वो बनाने वाला कमाएगा, राइट? In terms of improving the real economy, expansionary fiscal policy is more effective. In terms of financing the economy, expansionary monetary policy is better choice. Real economy is production, okay, services, agriculture. This is real, matlab something tangible. In case of financing the growth and all, as you have said, expansionary monetary policy, expansionary fiscal policy, matlab government is going to expand its budget. Government is going to borrow more and spend more on improving the, for example, Modi said yesterday, Prime Minister Modi said we should produce more toys. Now something real is there. Real economy means something which you can touch and feel and things like that, okay? So real economy का मतलब ये है, now the government will expand its budget. Government will launch a scheme to incentivize the toys articrafts producers. ठीक है, दिस इज देयर, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. अब इसको फिनेंस कौन करेगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी विल गिव द लोन्स टू द बैंक्स टू गिव इट फर्दर टू द टॉयज मैन्युफैक्चरर्स. Aditya, is it clear? Okay, no issues. In terms of improving the real economy, this is done. Is appreciation of rupee always good for economy? अभिषेक, अभी आप पूछ रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ. Appreciation of rupee, it's not always good. It's not good for exporters. An exporter will be more happy if he is getting 73 rupees for dollar. Appreciation में ये हो जाएगा 70 rupees. तो मैंने, अगर मैं जियोनी के मोबाइल फ़ोन्स बना के साउथ अफ्रीका में बेच रहा हूँ और डॉलर का मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? डॉलर. मैंने यहाँ से फ़ोन, मैंने इंडिया में ये फ़ोन बेचता हूँ 7300 रुपीज़ का. मैंने ये फ़ोन बना के भेजा, मेरे को लगा कि $100 में पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन जब ये $100 वापस आए तो रुपये की वैल्यू हो गई 70 इंटू $100, 7000 मिले मेरे को, यानी कि जियोनी को 300 रुपये का पर मोबाइल फ़ोन लॉस हो गया. सो appreciation of economy is not good for an exports led economy like China or for exporters in Indian economy like Gioni. However, appreciation of rupee is good when the overall imports of a country are more than overall exports of a country. Clear है? Are we done for the day, guys? Any other doubt? बाकी सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होते, या तो क्लियर है या ऑल क्लियर है ना? कुसुम एंड अदर्स, तुम लोग संडे को क्या कर रहे थे? यू हैड फ्राइडे ऑल्सो दिस टाइम अराउंड. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, आगे वैसे समझ में आ जाएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स दिस थिंग.
हमारे इंपोर्ट्स और हमारे एक्सपोर्ट्स जब बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, हम अपने इंपोर्ट्स, ये तो सिर्फ ट्रेड अकाउंट है, ठीक है, हमारा ओवरऑल लेन देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकाउंट है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जब हमने पूरे वर्ल्ड से जितने पैसे लेने हैं और पूरे वर्ल्ड को जितने पैसे देने हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने यही पूछा है ना, ठीक है। अब उसमें से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक अहम हिस्सा है। फिर हमारे यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए, हमारे यहाँ पे टूरिस्ट ने आके कितने डॉलर खर्चे, हमारे यहाँ से कितने लोग यूएस में गए, उन्होंने कितने रुपीस वहाँ पे खर्चे, इस सब का टोटल। नॉमिनल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ओके फाइन। सो एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? प्राची और एक दो और भी हो, आप लोग एक्टिव नहीं हो आज। विवेक, सारा कुछ क्लियर है? हाँ, वेरी नाइस। सालसा इज देयर। रवि रोशन, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्री। Fine. So this was all for today. See you at करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आगे, अभी आगे ये टॉपिक शुरू होगा तो बता दूंगा, अभी के लिए इतना बता दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल गाइज फॉर टुडे in the economy class. See you at 8:30 for Indian polity class. Thank you guys.